Hello my dear children, welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. Children, my name is Vandana and we are doing book 8 SST and this is your book Time Travelers, Unraveling History's Mysteries. So children, today we are going to do chapter number 7 of civics and the name of the chapter is Confronting Marginalisation. So let's start with the chapter. Here you have to complete the table with your own understanding. My rights, my responsibilities. So complete it. After independence, the government of India took a number of steps to strengthen the educational and economic status of people belonging to the scheduled tribes and scheduled caste. The National Policy on Education 1986 updated in 1992 tried to pay more attention to the education of backward minorities in the interest of equity and social justice. Fundamental rights in confronting marginalization. The fundamental rights are aimed at overturning the inequalities in the past. So ये जो fundamental rights हैं, जो भी पहले inequalities थी, उन्हें जो है overturn कर रही हैं, उन्हें हटा रही हैं, and they have been used in successful abolishing the practice of untouchability, prohibiting discrimination on the grounds of religion, caste, race, sex or place of birth, or in forbidding human trafficking and forced labor. So ये जो चीजें हैं, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इन्होंने काफी ज्यादा हेल्प किया है इन प्रैक्टिसेस की जिनकी यहाँ पे बात की गई, इन्हें अबॉलिश करने में. सो इन चीजों को अबॉलिश कर दिया गया है ड्यू टू दिस फंडामेंटल राइट्स. The fundamental rights go beyond extending conventional civil liberties. They protect the cultural and educational rights of minorities by making provisions to enable them to preserve their distinctive language and establish and administer their own educational institution. So ये जो minorities हैं, इन्हें जो है equal rights दिए हैं, fundamental rights ने equal rights दिए हैं कि ये अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं और खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को खोल सकते हैं. These rights are a part of the human rights. ये जो राइट्स हैं ये ह्यूमन राइट्स के ही पार्ट हैं. That protect all minorities of India. Minority rights facilitate the equal participation of minorities in the public sphere and in the formulation of policies that affect them globally. Globally, minority rights are expressed in individual terms as right of person belonging to minority. So globally अगर देखा जाए तो minorities के जो right हैं उन्हें right of person belonging to minorities का नाम दिया गया. According to the human rights law, minority rights are not the right of the group per se but of the individual member of the group. So, अगर हम ह्यूमन राइट को देखें, ह्यूमन राइट जो लॉ है उसको देखें, तो जो माइनॉरिटीज के जो राइट है वो जो है किसी एक ग्रुप के राइट है, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात नहीं, पूरे ग्रुप की बात नहीं. सोशल जस्टिस एंड फॉर शेड्यूल कास्ट. सो शेड्यूल कास्ट को क्या सोशल जस्टिस दिया जा रहा है? कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट इन इंडिया हैज ग्रेट इम्पैक्ट ऑन मेनी हु हैव सफर्ड फॉर एजेस इन इंडिया. सो ये जो कास्ट सिस्टम है ये काफी ज्यादा बढ़ चुका है और बहुत सारे लोगों ने इसे सफर किया है कई सालों तक इंडिया में. They were denied the right of education and were thus left behind socially and economically. So ऐसे लोगों को एजुकेशन नहीं मिलती थी और इन्हें सोशल और इकोनॉमिकली जो है छोड़ दिया गया. They have been categorized as scheduled caste. इन्हें scheduled caste की कैटेगरी में रखा गया. The Constitution of India has adopted the policy of compensatory discrimination. So जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, इसने अडॉप्ट किया है कॉम्पनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी को फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वीकर एंड द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन. ऐसे सेक्शन की बेटरमेंट के लिए इंडिया ने बहुत सारे मेजर्स लिए. गिवन अहेड आर सम ऑफ द प्रोविजंस गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू इंश्योर दैट ऑल सिटीजंस आर ट्रीटेड इक्वली. आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ. सो अगर हम आर्टिकल 14 की बात करें तो ये कहता है कि हर कोई इक्वल है. Article 15 to ensures freedom to access the public places.
किसी भी पब्लिक प्लेस पे जा सकता है, चाहे वो कोई भी पर्सन। आर्टिकल 15(4) makes special provision for the advancement of any social and educationally backward class. So आर्टिकल 15(4) कहता है कि किसी भी सोशली या एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास के लिए हम they can make advancement. And Article 16 provides for reservation of the scheduled caste in government and public services. So Article 16 जो है इन्हें रिजर्वेशन भी देता है किसी भी गवर्नमेंट या पब्लिक सर्विस में। Article 17 abolishes the practice of untouchability in any form. अब Article 17 क्या untouchability को प्रोहिबिट करता है एंड अगर कोई भी ऐसे करता है तो उससे पनिशमेंट मिलती है। Article 90 allows freedom of movement to the country विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मतलब आर्टिकल 19 कहता है कि कंट्री में ये लोग कहीं भी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के घूम सकते हैं, दे कैन मूव एनीवेयर। आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। आर्टिकल 23 कहता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं की जाएगी और लेबर को फोर्स नहीं किया जाएगा कोई पर्टिकुलर वर्क करने के लिए। आर्टिकल 46 प्रोवाइड्स स्पेशल फैसिलिटीज एंड प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। आर्टिकल 46 कहता है कि इन्हें स्पेशल एजुकेशन दी जानी चाहिए, स्पेशल फैसिलिटीज देनी चाहिए एजुकेशन के लिए। आर्टिकल 330 मेक्स रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड इन द हाउस ऑफ पीपल एंड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। सो ये जो आर्टिकल 30 है ये जो है रिजर्वेशंस बनाता है सीट्स के लिए शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिए एंड इन द हाउस ऑफ पीपल एंड लेजिस्लेटिव, मतलब ऐसी जगहों पे जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है यहाँ पे भी इनके लिए रिजर्वेशन है। आर्टिकल 338 has led to the establishment of the National Commission of Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. So आर्टिकल 338 जो है इसमें भी जो है बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट हैं जो नेशनल कमीशन है उसमें शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए बहुत सारी जो है चीजें दी गई हैं एंड टू टेक अगेंस्ट एक्शन अगेंस्ट एट्रोसिटीज कमिटेड अगेंस्ट देम। और अगर इनके खिलाफ कोई भी चीज कोई भी इल मैनर्ड बिहेवियर किया जाएगा तो इट इज पनिश्ड। In addition to constitutional provisions and government policies, some voluntary organizations are also playing an important role in promoting the welfare of the scheduled castes, such as Indian Red Cross Society, Sri Ramakrishna Mission, etc. So government तो कर ही रही है, government में बहुत सारे ऐसे provisions हैं जो ये बताते हैं कि ऐसे लोगों की जो भी they are गिवन इम्पोर्टेंस, ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंस दी जा रही है और इनके जो भी राइट्स है उन्हें प्रोटेक्ट किया जा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे वेलफेयर क्लब्स कह सकते हैं, वेलफेयर सोसाइटीज हैं जो इनकी प्रोटेक्शन के लिए वर्क कर रहे हैं और उनके नेम यहाँ दिए गए। प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स और आदिवासीज आर जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड एंड कल्चरली डाइवर्स। दे आर द इंडिजिनस पीपल ऑफ इंडिया एंड देयर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी हैज मेनी एस्पेक्ट्स। Language, religion, and profound bond linking the individual to the community and the minimal dependence on the money and the markets. Tribals are identified by the territories which are essence of their existence and the source of their. So यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब है जिन्हें आदिवासी भी कहा जाता है, ये ऐसे लोग हैं जो जोग्राफिकली और कल्चरली दोनों ही तरीके से डाइवर्स हैं, मीन्स हमसे अलग हैं। और ये वो लोग हैं जो जिनकी लैंग्वेज भी अलग होती है, जिनका रिलीजन भी अलग होता है और जो भी इनके रहने सहने का तरीका है वो भी हमसे काफी ज्यादा अलग होता है। ये जो लोग हैं ये अपनी टेरिटरी के अकॉर्डिंग ही जाने जाते हैं, मीन्स कौन सी जगह में हर जगह के जो ट्राइबल लोग हैं वो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। एंड विच आर द एसेंस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, ये इनके एग्जिस्टेंस को बताता है। एंड सोर्स ऑफ देयर साइंस, टेक्नोलॉजी, वे ऑफ लिविंग, रिलीजन एंड कल्चर। सो इन सारे फैक्टर्स को ये बताता है। ऑन अकाउंट ऑफ द मार्जिनलाइजेशन दे फेस, दे आर एट द लो रैंकिंग इन एवरी सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर। सो ये लोग जो है काफी मार्जिनलाइजेशन को फेस करते हैं और ये जो है काफी ज्यादा लो रैंकिंग में होते हैं। सम कॉमन फीचर्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटीज आर, कुछ कॉमन फीचर्स जो हैं इस सोसाइटी के वो है रिलेटिव ज्योग्राफिकल आइसोलेशन ऑफ द कम्युनिटी, एब्सेंस ऑफ फूड taboos, absence of division of labor and caste system, relative freedom of women within the society, a distinct culture which is
community oriented, and that gives primacy to nature. Reliance on forests, ancestral land, and water bodies within the territories of the communities for food and other necessities. So children, here you can see tribal women of the northeast. अब ये जो कुछ कॉमन फीचर्स है ट्राइबल सोसाइटी के, वो ये कहते हैं कि इनका जो जोग्राफिकल एरिया है, ये जो कम्युनिटी है वो काफी ज्यादा हमसे अलग है। यहाँ पे फूड, किसी भी एक पर्टिकुलर फूड को लेके कोई ऐसा जो है टैबू नहीं है कि नहीं ये फूड नहीं खाना चाहिए। एब्सेंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर जो है नहीं है, कास्ट सिस्टम नहीं है इन लोगों की कम्युनिटी में। यहाँ पे जो वुमेन है उन्हें फ्रीडम नहीं है इनके पर्टिकुलर सोसाइटी में, और इनकी जो कम्युनिटी है, इनका जो कल्चर है वो काफी अलग है हमसे। ये लोग जो है फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, अपने जो लैंड है, जो लैंड एरिया जहाँ पे लोग रहते हैं वहां पे उस चीज पे डिपेंड करते हैं, वहां के जो पास के बहने वाले वाटर बॉडीज हैं उस पे जो है पूरी तरह से डिपेंडेंट है। ये अपनी टेरिटरीज या फिर कम्युनिटी पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है अपनी डेली चीजों पे। सोशल जस्टिस फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, अब शेड्यूल्ड ट्राइब को क्या क्या सोशल जस्टिस मिलना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज laid down certain provisions for the scheduled tribes to ensure state support for them. The scheduled tribes comprises 8.6% of India's population. So ये गवर्नमेंट ने काफी सारे जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, काफी सारे राइट्स दिए इन्हें, और हमारे जो इंडियन पॉपुलेशन है उसका 8.6% ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। The provisions made by the Constitution of India for the tribals are as follows. Article 14 confers equal right and opportunities to all the citizens within the territory of the India. So ये जो Article 14 है ये इक्वल राइट देता है, अपॉर्चुनिटी देता है सारे जो भी सिटीजन्स हैं इंडियन टेरिटरी के। Article 15(1) prohibits discrimination against any citizen on the ground of sex, religion, race, caste, etc. So इन सारे बेसिस पे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। Article 15(4) directs the states to make special provisions for the advancement of social and educationally backward class. So Article 15 कहता है कि जो भी ये सोशली या फिर एजुकेशनल बैकवर्ड लोग हैं इन्हें जो है प्रॉपर एजुकेशन देनी है। Article 16 provides equality of opportunity in matter of public employment, and this article also empowers and the state to reserve any post or appointment in favor of any backward class or citizens who are within the opinion of the state are not adequately represented in the service under the state. So ऐसे लोगों को प्रॉपर रिजर्वेशन दी जाती है किसी भी पोस्ट की, इनके लिए जब कुछ पोस्ट जो है पहले से अलॉट किए जा चुके हैं इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग। Article 23 prohibits trafficking of human beings, beggars and any other form of forced labor. So Article 23 जो है किसी भी तरीके की ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकता है। Article 29 conserves the language or culture of the minority group. Article 29 जो है लैंग्वेज और कल्चर को प्रिजर्व करता है, कंजर्व करता है। And Article 164 provides for the minister in charge of tribal welfare in the state of Bihar, Odisha and मध्य प्रदेश। आर्टिकल 164 जो प्रोवाइड करता है मिनिस्टर इंचार्ज को कि ट्राइबल वेलफेयर का एक मिनिस्टर इंचार्ज हो सकता है जो इन सब जगहों को गवर्न करे। नाउ अदर बैकवर्ड क्लासेस which is OBC, other backward classes are defined by the constitution of as social and educationally backward class. So जो OBC क्लास है इसे सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी में रखा गया है। These castes and communities were investigated by the मंडल कमीशन, और ये जो कास्ट और कम्युनिटीज हैं इन्हें मंडल कमीशन ने इन्वेस्टिगेट किया था। The President of India is empowered to appoint a commission to look into the welfare of the OBCs. So Indian President जो है वो अपॉइंट कर सकता है एक कमीशन को जो इनके वेलफेयर को देखे। By profession OBCs are small cultivators. By profession अगर देखा जाए तो ये जो OBC हैं वो छोटे कल्टिवेटर्स होते हैं, एग्रीकल्चर लेबर्स होते हैं, आर्टिशियंस होते हैं, also engaged in weaving, fishing, construction work, etc. OBCs have dramatically low social, economic and educational levels. The dismal state is consequence of systematic discrimination. So ये लोग जो है काफी ज्यादा इकोनॉमिकली
और एजुकेशनली और सोशली जो है बैकवर्ड होते हैं, इसलिए ये अदर बैकवर्ड कास्ट में आते हैं। मेजर्स फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ ओबीसी, ओबीसी को अपलिफ्ट करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए गवर्नमेंट ने? The government has passed Article 15(4) enjoins the creation of special provision for the advancement of any socially and educational backward class or citizens of India. Article 16(4) empowers the state to make provisions for the reservation of appointment or post in favor of any backward class or citizens, which is the opinion of the state, and not adequately represent in service under the state. So Article 16 कहता है कि it empowers the state to make provisions. ये जो कहता है कि जो state है वो provisions बनाए इनके रिजर्वेशन के लिए, अपॉइंटमेंट किसी भी पोस्ट की अगर अपॉइंटमेंट है तो उसमें जो है इनके एक जो है सीट्स रजिस्टर्ड होती है जिससे they can enjoy that benefit. Now what is the reservation? On the means of bringing the marginalized section into the mainstream of society is through reservation. So reservation के through इनको जो है they can be given a proper place. Reservations have special provision for the marginalized society, and to ensure political participation of the marginalized section, seats have been reserved for them in the central and the state legislature. तो इनके लिए जो सीट जो है अपॉइंट की गई है सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर में, and also in local government bodies only. In government services, some percentage of the jobs are reserved for the scheduled caste, scheduled tribes, other backward classes. So अगर हम गवर्नमेंट सर्विसेज की बात करें तो इन तीनों कैटेगरीज के लिए कुछ ना कुछ सीट्स जो है रखी गई है. Minorities in India, other than Hindus, all other religious communities are minor. So इंडिया में हिंदू के अलावा जितनी भी कैटेगरीज है वो सारी माइनर हैं. The Hindu constitute about 38% of the population. Population का 38% ये है. There is no linguistic majority in India except for Hindi. Protection of minorities is an essential component of public policy. So public policy का एक ये बहुत important factor है minorities को protect करना. The state along with the constitutional provisions guides these groups to foster and protect the linguistic, cultural, social, religious and educational rights. So state क्या करता है इन सारी चीजों को प्रोटेक्ट करता है. तो channelize this process the framers of the constitution while upholding the principle of secularism and equality made some provisions to safeguard the interests of the minorities. So जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा था तो इन सारे माइनॉरिटीज को ध्यान में रखते हुए प्रोविजंस बनाए गए थे जिनसे इनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जा सके. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ माइनॉरिटीज. अब कुछ प्रोविजंस है माइनॉरिटीज के. लेट्स रीड. आर्टिकल 29(1) ये गारंटी करता है कि जो माइनॉरिटी हैं उनको जो है राइट मिले प्रिजर्व एंड कंजर्व द डिस्टिंक्ट लैंग्वेज. अपने लैंग्वेज को अपने कल्चर को ये प्रिजर्व कर सकते हैं. आर्टिकल 29(2) states that no citizen can be denied admission in any government or government aided educational institute or on the grounds of religion, caste, race or language. So आर्टिकल 29(2) कहता है कि किसी भी सिटीजन को ये जो सारे फैक्टर्स लिखे गए हैं रिलीजन, कास्ट या फिर रेस के अकॉर्डिंग जो है किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या फिर स्कूल में जो है परमिशन जो है डिनाई नहीं की जाएगी, ये वहाँ पे इजीली जा सकते हैं. आर्टिकल 30 gives all religions and linguistic minorities the right to establish and administer educational institute of their choice. आर्टिकल 30 कहता है कि जो भी रिलीजन है या जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अपने चॉइस के इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं. आर्टिकल 350A मेक्स प्रोविजंस फॉर द सेटल्ड स्टेट टू क्रिएट फैसिलिटीज टू इम्पार्ट इंस्ट्रक्शंस इन मदर टंग टू चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एट प्राइमरी लेवल. सो ये जो आर्टिकल 350 है ये प्रोविजंस ऐसे बनाया इसने कि ये बताता है ये अपने मदर टंग को यूज कर सकते हैं प्राइमरी लेवल तक. पढ़ाई जब ये कर रहे हैं तो उसमें प्राइमरी लेवल तक ये अपने मदर टंग को यूज कर सकते हैं. आर्टिकल 350 calls upon the state to make provisions for the special officer for linguistic minorities. आर्टिकल 350B जो है स्टेट को बुलाता है और अपने इनके जो स्पेशल ऑफिसर्स हैं वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के स्पेशल ऑफिसर्स को भी रख सकते हैं.
Now, England is probably the first country to formulate laws relating to the right of women in property. So, इंग्लैंड जैसा पहला कंट्री है जहाँ पे जो वुमेन है they get the equal right to property. Upliftment of women in India. Studies show that sex ratio is on the decline and that a lot of women do not have access to basic facilities. So studies ये बताती हैं कि जो सेक्स रेशियो है काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है और जो काफ़ी सारी जो वुमेन हैं उन्हें जो है बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं. This has made the government draw up a lot of amendments to better the lot of women in the social, economic and political spheres. So इसकी वजह से जो women हैं वो अपनी social, economic और political spheres में जो है आगे बढ़ चुकी हैं. These amendments have helped women to climb the ladder of success in the society. और इन women's ने जो है ये जो भी amendment है इसकी वजह से जो women है वो सोसाइटी में आगे बढ़ चुकी है. नंबर ऑफ माल प्रैक्टिसेस अगेन वुमेन हैव आल्सो बीन अबॉलिश्ड. सो कई सारे जो माल प्रैक्टिसेस हैं वुमेन के लिए जो किए जाते थे, कई सारे जो बुरे आप कह सकते हो माल प्रैक्टिसेस मींस बुरे काम जो वुमेन को लेके किए जाते थे वो सारे जो है खत्म हो चुके हैं. प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 वाज फ्रेम टू अबॉलिश चाइल्ड मैरिज. तो चाइल्ड मैरिज को खत्म करने के लिए जो है ये एक्ट बनाया गया. हिंदू मैरिज एक्ट जो है बनाया गया 1955 में जिसमें जो है विच मेड पॉलीगैमी अ लीगल ऑफेंस, जिसमें पॉलीगैमी को एक लीगल ऑफेंस बताया गया है. द डाउरी प्रोहिबिशन, एक डाउरी प्रोहिबिशन बनाया गया था 1961 में जिसमें जो है प्रोहिबिट किया गया था लोगों को डाउरी लेने से. अब जो है 1869 में एक एक्ट बनाया गया था जिसका नाम था इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, and it was enacted to prohibit the indecent representation of women through advertisement on the or in publication, writing, painting figures or any other matter. So इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वुमेन की आप जो है उन्हें यूज नहीं किया सकता है एडवर्टीजमेंट के लिए या पब्लिकेशन के लिए या फिर पेंटिंग के लिए या फिर फिगर्स बनाने के लिए. The Hindu Succession Act 2005 gave daughters equal right to property. और हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 था जिसमें डॉटर्स को भी इक्वल राइट था प्रॉपर्टी में. आर्टिकल 243D प्रोवाइड्स दैट 1/3 सीट ऑफ पंचायत शैल बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन. सो आर्टिकल 243D जो था उसने बताया कि हर वुमेन को इक्वल राइट है रिजर्वेशन. द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 वाज ड्राफ्टेड टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड और फीमेल लिव इन पार्टनर फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस. सो अब जो है एक और एक्ट बनाया गया था 2005 में जिसमें वाइफ को या फिर फीमेल लिव इन पार्टनर को डोमेस्टिक वायलेंस से बचाया जा सकता था. एट द हस्बैंड्स हैंड और मेल लिव इन पार्टनर्स और हिज रिलेटिव्स. सो कोई भी ऐसा मेल डोमिनेटिंग पर्सन है उसके हाथों से बचाया जा सकता है. एंड इट ऑल्सो कवर्ड सिस्टर्स एंड मदर, और इसमें सिस्टर्स और मदर्स को भी कवर किया गया. चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड राइट्स. यूनिवर्सली child rights are defined by the United Nations Convention on the Right of the Child, and according to UNCR, child rights are minimum entitlement and freedoms that should be afforded to all the people below the age of 18, regardless of race, color, gender, language, religion, opinion, origin, wealth, birth, status or ability to, and therefore apply to all the people everywhere. So ये जो rights बनाए गए थे ये जो भी लोग थे और इन सारे basis पे बनाए गए थे in order to provide the protection environment for children. The Constitution has framed some specific laws for children. So these are some laws for children. Children below the age of 14 can be employed in any occupation according to the child labor. So 14 years तक के जो बच्चे हैं उन्हें चाइल्ड लेबर से प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉ बनाया गया था. एवरी चाइल्ड हैज द राइट टू गेट बेसिक एजुकेशन टिल एज ऑफ 14. तो 14 इयर्स की एज तक हर बच्चे को ये राइट दिया गया था कि वो जो है अपनी एजुकेशन को ले सकते हैं. आर्टिकल 21A के अकॉर्डिंग राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन. सो हर बच्चे को फ्री और कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन दिया जाए. द राइट टू एक्सप्रेशन गिव्स
every child the freedom to express himself or herself in whichever way he or she likes. So right to expression जो है हर बच्चे को ये right देता है कि वो बच्चा अपने आप को express कर सकता है जिस भी तरीके से वो चाहता है. Government schools have been set up to provide free education to children. बच्चों को free education देने के लिए government schools को establish किया गया. Midday meals are provided in schools to promote attendance. Attendance को बढ़ाने के लिए midday meals provide किए गए schools में ताकि बच्चे school आए. Special health centers have been set up to provide immunization to children. So अलग स्पेशल हेल्थ सेंटर्स बनाए गए जिसमें जो है बच्चों को जो है इम्यूनाइजेशन दिया जाए. द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 हैव बीन पास्ड बाय द लोक सभा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन. सो ये जो प्रोटेक्शन है चिल्ड्रन का सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचाने के लिए बच्चों को एक एक्ट बना 2012 में जो लोकसभा में पास किया गया जिसमें बच्चों के साथ जो सेक्सुअली अब्यूजमेंट होती थी उससे जो है उन्हें बचाया जा सके. स्काउट एंड ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग. Manual scavenging refers to the practice of removing human and animal waste excreta using brooms, tin plates and baskets from dry latrines and carrying it on the head to disposal grounds some distance away. So क्या होता था पहले मैनुअल स्कैवेंजिंग हुआ करती थी. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसमें क्या होता था लोगों को जो है ह्यूमन और एनिमल वेस्ट जैसे कि एक्सक्रीटा हो गया जो टॉयलेट हम पास ऑन करते हैं जो स्टूल हम पास ऑन करते हैं वो चीज उसे जो है लोग जो है ब्रूम से मीन्स झाड़ू से उठाया करते थे टिन प्लेट्स के ऊपर एंड बास्केट में फ्रॉम ड्राई लैट्रिन में से ये लोग बास्केट में या टिन प्लेट्स में उन एक्सक्रीटा को उठाया करते थे और उन्हें अपने सिर पे उठा के वो जो डिस्पोज करने के लिए ग्राउंड में ले जाया करते थे थोड़ी दूर. मैनुअल स्कैवेंजर इज अ पर्सन हु डज द जॉब. और मैनुअल स्कैवेंजर कौन है? वो पर्सन जो इस काम को करता है. दिस जॉब इज मेनली डन बाय दलित वुमेन. और ऐसे काम कौन करता है? दलित वुमेन करती हैं या यंग गर्ल्स करती हैं. अकॉर्डिंग टू द आंध्र प्रदेश बेस्ड सफाई कर्मचारी आंदोलन an organization working with manual scavengers, there are 1 lakh person from Dalit communities who continue to be employed in this job in this country and who work in 26 lakh private and community dry latrine managed by municipalities. So, आंध्र प्रदेश में एक सफाई कर्मचारी आंदोलन हुआ और वहाँ पे जो भी मैनुअल स्कैवेंजर्स वर्क कर रहे थे वो इसमें पार्ट हुए. देयर वर 1 लाख पर्सन फ्रॉम दलित कम्युनिटी. दलित कम्युनिटी से 1 लाख लोग वहाँ पे थे जिन्हें जो है इस जॉब में जो है कंटिन्यूसली एम्प्लॉय किया गया एंड हु वर्क इन 26 लाख प्राइवेट एंड कम्युनिटी. और ये लोग जो है 26 लाख प्राइवेट और कम्युनिटी ड्राई लैट्रिन मैनेज जो म्युनिसिपैलिटी मैनेज करती है वहाँ पे ये लोग वर्क करते हैं. Manual scavengers are exposed to subhuman condition. ऐसे लोगों को subhuman condition जो है देखना पड़ जाता है of work and face serious health hazards. ऐसे लोगों को जो है बहुत ज़्यादा बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है. They are constantly exposed to infections that affect their eyes, skin, respiratory and gastrointestinal system. So ये सारे बॉडी ऑर्गन्स इनके इन्फेक्ट हो जाते हैं. दे गेट वेरी लो वेजेस फ्रॉम द वर्क दे परफॉर्म. जो भी वर्क ये करते हैं उससे इन्हें काफी कम पैसे मिलते हैं. दोज वर्किंग इन अर्बन म्युनिसिपैलिटीज अर्न 200 पर डे. जो भी अर्बन म्युनिसिपैलिटीज में काम करते हैं उन्हें 200 रुपए पर डे मिलते हैं. एंड दोज वर्किंग प्राइवेटली आर पेड मच लेस. और जो प्राइवेटली वर्क करते हैं उन्हें जो है और भी कम मिलता है. As you have read earlier in this book, the practice of untouchability has been abolished by the Indian Constitution. However, manual scavengers in different parts of country, the Bhangis in Gujarat, Pakhis in Andhra Pradesh, and the
सिक्कल years in तमिलनाडु continue to be considered untouchable. लेकिन ऐसे जो लोग हैं जो manual scavengers उन्हें आज भी untouchable माना जाता है. They often live in separate settlements. ये अलग जगहों पे रहते हैं in the outskirts of the village के बाहर, and are denied access to the temple, public water facilities etc. इन्हें जो है temples में जाना या public वाटर फैसिलिटीज को यूज करना जो है इन्हें नहीं दिया जाता है. The Constitution of India recognizes the vulnerable position of children and their rights to protection. In 1993, the government passed the employment of manual scavengers and construction of dry latrines. So 1993 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया इन लोगों को बचाने के लिए. This law prohibits the employment of manual scavengers as well as the construction of dry latrines. So इस लॉ ने क्या किया, प्रोहिबिट किया ऐसे लोगों को एम्प्लॉय करने के लिए या फिर ऐसे लैट्रिन्स बनाने के लिए. In 2003, the सफाई कर्मचारी आंदोलन and 13 other organizations of India included 7 scavengers filed a PIL in the Supreme Court. So 2003 में जो सफाई कर्मचारी आंदोलन था और बाकी जो 13 ऑर्गेनाइजेशन से इन लोगों ने मिलके सुप्रीम कोर्ट में एक PIL को फाइल किया. The petitioners claim that manual scavenging still existed and it continued to in government undertakings like the railway. So इस petition ने बोला कि जो manual scavenging है वो आज भी हो रही है और ये ज़्यादातर रेलवे मीन्स गवर्नमेंट के खुद के इंस्टीट्यूट में हो रही है जो रेलवेज है. The petitioners sought enforcement of their fundamental rights. The court observed that the number of manual scavengers in India has increased since 1993 law. So कोर्ट ने क्या देखा कि 1993 में जो लॉ बना था उसके बाद जो काफी सारे जो है स्कैवेंजर्स बढ़ गए हैं. It directed every department, ministry of the union government and state government to verify the facts within 6 months. So सुप्रीम कोर्ट ने सारे जो भी स्टेट गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट जो भी थे इन सबको जो है आदेश दिया कि 6 महीने के अंदर इन्हें जो है फाइंड आउट करना है कि क्या मैटर है. If manual scavenging was found to exist, then the government department has to actively take up a time-bound program for their liberation and rehabilitation. So, अगर ऐसा कुछ पाया गया तो ये जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, ये rehabilitation programs को ऑर्गेनाइज करेंगे. The prohibition of employment as manual scavengers and the Rehabilitation Act came into force on 6 December 2013. So 6 December 2013 को ये एक्ट लागू हुआ. Now let's revise, children, what we have learned. Marginalization and suppression of any section of the society owing to their ethnicity or gender is not just. The fundamental rights enshrined in the Constitution of India ensures social and economic justice to the marginalized section. Many constitutional provisions have been made to check all atrocities against the scheduled caste and scheduled tribes, women and children. The reservation policy ensures that the marginalized section have ample opportunity of growth and development. And it also ensures their upliftment in the society through direct participation. Indian society can never be called truly democratic till marginalized groups are brought into the mainstream. Now let's answer these questions. What do you mean by the confronting marginalization? So confronting marginalization का क्या मतलब है? What are the various provisions for the upliftment of scheduled caste in India? So scheduled caste को uplift करने के लिए क्या क्या provisions बनाए? State 2 laws by the Constitution of India for protecting Dalits in India. So India में Dalits को protect करने के लिए कौन से 2 laws बनाए गए? उनके name लिखना. What are minority groups in India? Minority groups क्या है India में? List some rights of children. So बच्चों के कुछ rights आपको यहाँ पे लिखने हैं. Now let's move on to answer in detail. Briefly elaborate the role of fundamental rights in confronting marginalization. Write a paragraph on the traditional way of life of the tribals.
What can we do to protect the interests of the weaker section of the Indian society? How can just be justice be made accessible to marginalized groups of people? And child labor is very common in India. Where do where all do you find them working? And how can you help these children who are being denied education and फ्रीडम? सो कैसे आप जो है चाइल्ड लेबर को रोक सकते हो, कहाँ पे ये लोग आपको दिखते हैं, और कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो इन्हें एजुकेशन ऑफ फ्रीडम से? So children, you have to answer these questions. These are your homework, and I hope that you have understood the chapter, and you have to complete the exercises that is given to you as homework. Read the chapter again and complete it. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay lit.